Hello students, now we will start present perfect continuous tense. This tense denotes an action that started in the past but is still going on continuously and may finish in future. For example, I have been teaching you since morning. Students, present perfect continuous tense और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है पहले ये समझ लेना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज मेनली कंसर्न्ड विद नाउ. अभी क्या हो रहा है एट प्रेजेंट, व्हाट इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट. प्रेजेंट परफेक्ट, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस द एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड. It involves past, present and future, all the three tenses. For example, this is present, future and past. Present mean now, past time gone by, future time to come. Okay, now see, when we are saying I am waiting for you, I am teaching you, I am eating food, I am writing a story, at that time we are talking about present, what is going on now at the time of speaking. But when we are talking about present perfect continuous, past is also involved. Past is also involved. How? The starting point of an action is also given. Action started here, still it is going on and may finish in future. When we were talking about present continuous tense, only these two tenses were involved, present, and because the action is incomplete so it may finish in future. अब ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम सिर्फ अभी के बारे में बता रहे हैं. आपके हाथ में पेन है, आप कुछ लिख रहे हैं, इट मीन्स आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम रीडिंग समथिंग, आई एम गोइंग टू मार्केट, ओके, I am eating food. Continuously some action is going on at the time of speaking at present. But when we are talking about present perfect continuous tense तो क्या हो रहा है, past भी involve है. एक चीज ऐड कर दी है उसमें. अगर आप बोल रहे हैं I am waiting for you since morning, this is wrong because I am waiting for you. But if starting point is given since morning or this is 2020, this is 1997, this is 1972, ये सभी पास्ट हैं. मैं ये बोल रहा हूँ आई एम लिविंग इन हिमाचल प्रदेश, आई एम लिविंग इन हिमाचल प्रदेश सिंस व्हेन, कोई पता नहीं है कब से रह रहा है, नो स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन. बट व्हेन स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन, जब स्टार्टिंग पॉइंट आपको दे, आई हैव बीन लिविंग इन हमीरपुर और इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1997, जब टाइम दिया है एट दैट टाइम यू विल यूज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. टाइम नहीं दिया है स्टार्टिंग एक्शन का तो आपने सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस EZMR करना है. आई एम लिविंग इन हमीरपुर बट आई हैव बीन लिविंग इन हमीरपुर और आई हैव बीन लिविंग इन हिमाचल प्रदेश since 1997, since 1972 और I have been living in Himachal Pradesh for 20 years, for 40 years, for 30 years, for 22 years. This is, if starting point is given, the tense will be perfect continuous tense. Okay, so now example मैंने आपको दिया है. The example is I have been teaching since morning. जब टाइम दे दिया since morning, कब से, what is the starting point. Here the person is more concerned about the starting point. Suppose someone is making a call to you. Hello Mr.
my friend, where are you, what are you doing? Oh, I am waiting for you. Again you receive a call after half an hour and you again say, यार I am waiting for you, जल्दी आओ, I am waiting for you. वो फिर भी नहीं आता 1 घंटे, फिर वो उसको फोर्स करके क्या बताएगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताएगा, ओ यार हद है, आई हैव बीन, यू नो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स. टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को दे रहा है. तो सिंस फॉर है तो हैव बीन है. एरर मेकिंग में भी हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं आई एम टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग. दिस इज रॉन्ग. वाई? बिकॉज सिंस कैन नॉट बी यूज विदाउट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, तो इन परफेक्ट टेंसेज ओनली वी कैन यूज सिंस और फॉर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगेन only 2 things what we have to remember: use of helping verb and verb. In this tense, helping verb is has or have, one of the two. ठीक है, one of the two. He has, she has, it has, Ravi has, singular number has, or I have, you have, they have, plural have. Plus there is third form of been. Be, third form of be is been. Has, have, been. प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, फर्स्ट फॉर्म एस और एस, डू, डज. फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, इज, एम, आर. फिर थर्ड में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आ गया, हैज, हैव, बीन आ गया. और स्टूडेंट्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, मीन प्रेजेंट participle form of the verb. Present participle form of the verb mean first form plus ing. ऐसे आपके जितने भी सेंटेंसेस बनाओगे इस टेंस के वो बनते जाएंगे. प्लस एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर स्टार लगा दीजिए. एक चीज़ है जो इस टेंस में एक्स्ट्रा, वो क्या है, यूज ऑफ since for. When the starting point of an action is given, you will have to use the preposition since और for. preposition का हम यूज करेंगे. और मैं आपको ये भी बता दूंगा इस लेक्चर में कि since कहाँ यूज करते हैं और for कहाँ यूज करते हैं. तो ये हो गया since और for. has, have, been यूज करना है. आपके पास क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, यूज ऑफ सिंस फॉर. तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हैज, हैव, बीन, और वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. ओके स्टूडेंट, नाउ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1 इज एफर्मेटिव. Affirmative sentences. Affirmative sentences पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी. हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव प्लस हैज, हैव प्लस बीन. सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब आई बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, कंप्लीमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा. प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम, बाकी के सेंटेंसेस यहीं पर रुक गए थे, यहाँ आगे क्या लिखेंगे, सिंस फॉर डैश 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 वट एवर. सिंस फॉर मीन सिंस टाइम और पीरियड वट एवर इज देयर. तो सिंस फॉर डैश 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 मीन टाइम और period. So this is affirmative sentences. For example, she has been waiting for me since morning. I have been reading a story since morning. Mother has been working in the kitchen for an hour. She has been waiting for me for 2 hours, 3 hours, 4 hours, 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, ऐसे चलता जाएगा. फिर नंबर 2 नेगेटिव. Second one is negative sentences formation. How will you form negative sentences? सिर्फ क्या करना आपने, नॉट ही तो यूज करना है. सब्जेक्ट
प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स सिंस फॉर डैश डैश फुल स्टॉप। तो आपने क्या यूज़ किया, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब उनसे ये कहा जाता है कि जब एक हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर डू डज डिड जो भी है, तो नॉट कहाँ लगाएंगे, ऑब्वियसली आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। बट व्हेन देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स हैज हैव प्लस बीन, इन दोनों में से एक ले लो और बीन ले लो, दो हेल्पिंग वर्ब होगी, नॉट कहाँ यूज़ करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं बीच में, कुछ बोलते हैं हैज़ बीन नॉट, हैज़ बीन नॉट अच्छा लग रहा है वो भी, हैज़ बीन नॉट, कुछ बोलते हैं बीच में लगा देते हैं। अब ये बीच क्या है, एक आगे आपको टेंस आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देयर विल बी थ्री हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव बीन, तो बीच में कैसे लगाओगे, उसको काट तो सकते नहीं हो। तो देयर इज सिंपल रूल एंड द रूल इज नॉट इज ऑलवेज यूज्ड, नॉट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट, फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब को आने दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। शी हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, मदर हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन किचन फॉर एन आवर। ऐसे आप नेगेटिव वाले बना लो, कोई वर्ब ले लेने हैं, क्रैमिंग नहीं करनी है, रोट मेथड कोई नहीं अपनाना है। आप किसी भी बुक से जहाँ पर कंजुगेशन ऑफ वर्ब दिया होता है वहाँ पर आप 2, 4, 5 जितने भी वर्ब्स बीच बीच में से लेने उनके सेंटेंस बना लो इंग्लिश में, ठीक है। देन वी हैव दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, you will put helping verb first, has, have plus subject then second form of the verb। जैसे नेगेटिव में नॉट इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सिमिलरली इन इंटरोगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, फिर आपका आ गया फर्स्ट फॉर्म ing फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, then object other words or whatever adverb clause whatever there will be, since and for plus time period and sentence and ends with question mark। okay, तो have you been waiting for him since morning, has she been writing a story for 2 days, has mother वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वट एवर द सेंटेंसेज में बी, बस आपने ऐसे बनाते जाओ। एक पहले सिंपल बनाइए, आई हैव बीन राइटिंग अ पोइट्री फॉर 2 years, देन आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ पोइट्री फॉर 2 years, फिर आई बीन, हैव यू बीन, उसी को कन्वर्ट करते जाइए, ऐसे हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर व्हेन वेयर वाला आ गया तो उसको पहले लगा दो, व्हेन हैव यू बीन, व्हेन हैज़ ही बीन ऐसे, या वाई हैव यू बीन, वेयर हैज़ ही बीन, ऐसे आगे जितने मर्जी सेंटेंस बना लो, बस इससे पहले वो लगाने। प्लस इफ देयर इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस यू कैन मेक और फॉर्म योर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, यू कैन कॉन्ट्रैक्ट इट। हाउ, हैवंट यू, हैवंट यू, हैव यू नॉट नहीं करना है, हैव यू नॉट नहीं करना, हैवंट यू बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, सो यू कैन यूज दैट इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। तो आई होप कि ऐसे आप ये सारे के सारे सेंटेंसेस बना लेंगे। और स्टूडेंट्स देखिए, अब एग्जाम की बारी आती है, तो एग्जाम में क्या होता है, सिंपल सा सेंटेंस आ गया। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हिंदी में तो आता नहीं है, जब आप हिंदी में टेंसेस करते थे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस, यू कैन सिंपली से रहा है, से रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, रहा है,
वहाँ पर आप सिंपल कोई काम कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ पर बोल रहा है से रहा है, से स्टैंड्स फॉर टाइम, से मीन टाइम, कब से, ठीक है, व्हाट इज द टाइम। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देयर इज नो वर्ड इन हिंदी, you will have to find out which tense is to be used there. For example, she write a story now. She write a story now. कुछ आपके दिमाग में बात याद आई? Now. Now mean present continuous tense. She is राइटिंग अ स्टोरी नाउ। इसी सेंटेंस को ऐसे लिखो, शी राइट अ स्टोरी फॉर 2 hours या सिंस 9 o'clock। सपोज ये आ गया, दोनों में से कोई भी, फॉर 2 hours सिंस 9 o'clock, फॉर 2 hours सिंस 9 o'clock। अब ये वाला तो चला गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो हो नहीं सकता। क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इज गिवन। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर दे रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? फॉर 2 hours सिंस 9 o'clock, सीधा ही, ओ स्टार्टिंग पॉइंट इज गिवन, इट मीन्स दिस इज present perfect continuous. If this is present perfect continuous, what is helping verb? Has been, have been, has been, form of the verb, first form ing. She has been writing a story for 2 hours. ओके, सो इसमें कोई एग्जाम में ऐसे आएंगे। हिंट आपको दिया होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है डेली होगा। सपोज यहाँ लिखा होता है शी राइट अ स्टोरी डेली, शी राइट्स अ स्टोरी डेली, शी राइट अ स्टोरी नाउ, शी इज राइटिंग अ स्टोरी नाउ, शी राइट अ स्टोरी जस्ट नाउ, शी हैज रिटन अ स्टोरी जस्ट नाउ। और चौथा, शी राइट अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 years। ओके, सो यू कैन राइट शी हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी। बिल्कुल सीधा सीधा दिया हुआ है, आपको हर चीज़ की पहचान वहाँ पर दी हुई होगी। और स्टूडेंट्स, इसमें ये याद रखनी है कि इसमें मेन फोकस कहाँ पर है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन इज गिवन, then continuity is given, it means still the action is going on, and there are actions or state action or some state or activity or state that extends over a period of time। वो उसमें आपने क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में that the activity or state extends over a period of time, पास्ट भी इन्वॉल्व है, प्रेजेंट भी इन्वॉल्व है, फ्यूचर भी इन्वॉल्व है। और ऐसे सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हमारे पास कैसे वर्ब्स दैट हैज़ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, इस टेंस में हम ज़्यादातर कौन से वर्ब्स यूज़ करते हैं? दैट हैव प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, जिनको हम प्रोलॉन्ग्ड सुबह से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, विच डिनोट अ पैसिव नॉट एक्टिव स्टेट। और ये पैसिव स्टेट को बताते हैं, एक्टिव स्टेट को नहीं बताते हैं। ये कौन कौन से वर्ब्स आते हैं? जैसे वेट, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, देन रेस्ट, ठीक है, शी हैज़ बीन टेकिंग रेस्ट, टेक रेस्ट करना पड़ेगा, नॉट रेस्टिंग, शी हैज़ बीन टेकिंग रेस्ट, देन लाई डाउन, ठीक है, लिव, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1970, देन वर्क। ये वाले वर्ब्स हैं जो आप मैक्सिमम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे कौन कौन से? वेट हो गया, रेस्ट हो गया, सिट हो गया, लाई डाउन हो गया, लिव हो गया, वर्क हो गया, स्टे हो गया, रीड हो गया, स्लीप हो गया, स्टडी हो गया। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1999, ठीक है। ऐसे जो भी आप लिखते हो वो आपके, तो इसमें यूजेस क्या हैं सेंटेंसेस के? यूजेस क्या हैं कि इसमें सिंपल सा यूज है कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टिल इट इज गोइंग ऑन एंड मे एंड इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें ये इसका यूज हो गया, ज़्यादा इसके कोई यूज है नहीं, तो आपने ये ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इसी टेंस में अगर हम ये काम भी साथ ही कर लें कि सिंस और फॉर कहाँ यूज़ करते हैं, किसके साथ सिंस यूज़ करना है, किसके साथ फॉर यूज़ करना है, वो भी आपकी एक
प्रेपोजिशन भी क्लियर हो जाएगी, प्लस आपने अगर अपने आप कोई सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप ये धोखा ना खाओ कि आप यू शुड नॉट बी पजल्ड ओवर दिस इशू दैट वेयर टू यूज सिंस, वेयर टू यूज, कि आपने टेंसेस तो करा दिए, अब मेरे को ये नहीं लग रहा कि मैं फॉर मंडे बोलूं कि फॉर 2 days बोलूं या क्या बोलूं, ठीक है। तो इसमें हमने ये, आप एक चीज़ याद रखिए कि ये आपका है सिंस और ये आपका है फॉर। अब जब हम छोटी क्लासेस में कई बार पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं सिंस किसके साथ यूज़ करते हैं, निश्चित समय के लिए, फॉर किसके साथ, अनिश्चित समय के लिए। फिर 1 घंटा 1 दिन से 1 बजे से निश्चित और अनिश्चित का तो पता नहीं है, हम तो बोले एक तो एक ही होता है, ठीक है। तो सिंस इज यूज्ड विद point of time and this is with period of time. Period is always larger period of time, जिसको आप कई बार बोलते हो indefinite time, ठीक है, और यहां पर बोलते हो definite time. Now how will you know whether time is definite or indefinite? How to identify definite or point of time? Point is always exact. This is point. This is point. Period is always larger. यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये पीरियड जो है वो लार्जर है. पीरियड इज ऑलवेज लार्जर. तो पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारे नाम रखे गए हैं, डेफिनेट कैसे हैं? जैसे मानो आप एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास में बैठे हो. देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माय क्लासरूम, ओके, एंड आई डिक्लेयर दैट 2 students from this class will go out and bring chalks for me. Now there are 40 students और मैं क्या बोल रहा हूँ, 40 स्टूडेंट्स में से मैं बोल रहा हूँ कोई 2 बच्चे जाओ और मेरे लिए चौक लेकर के आओ, या मेरे लिए पानी लेकर के आओ, या कुछ डस्टर लेके आओ, कुछ भी लेकर के आओ. तो अब 40 बच्चों में से 2 बच्चे क्या सोचेंगे, ये हु आर दोज 2? दिस इज इनडेफिनेट. कौन 2 हैं? रवि एंड श्याम है, सीता एंड गीता है, मीनाक्षी एंड रवीना है, कौन है? दिस इज इनडेफिनेट क्योंकि मैंने कहा 2. लेकिन जब मैंने कहा जाओ मीनाक्षी मेरे लिए पानी लेकर के आओ, जाओ मीनाक्षी मेरे लिए चौक लेकर के आओ, जाओ रवि बाहर जाओ और मेरे लिए चौक लेके आओ. ओ जितेंद्र, यू गो एंड ब्रिंग मी अ पीस ऑफ चौक. अब वो डेफिनेट है, जितेंद्र ही जाएगा, राजेश नहीं बोलेगा कि मैं जितेंद्र हूं, क्योंकि दिस इज डेफिनेट. डेफिनेट इसका मतलब क्या है? हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर टाइम इज डेफिनेट और नॉट? नेम इज गिवन, देयर इज नेम. अब नेम का छोटे से शुरू करते हैं, घड़ी के टाइम से शुरू करते हैं. ये आपको प्रेपोजिशन में भी काम आ जाएगा. यहां पर देखिए टाइम दिया. व्हेन यू आर सेइंग आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, it means 10 o'clock mean 10 o'clock. ये 10 o'clock का मीनिंग एक ही बार 10 बजेंगे दिन में, क्योंकि मैं आपको 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब 10 बजे सुबह से पढ़ा रहा हूँ. रात के 10 बजे तो अभी आएंगे, तो कैसे एडवांस में कैसे पढ़ा सकता हूँ? तो वो एक ही बार आ रहे हैं. तो सिंस किसके साथ आया? सिंस 9 o'clock, सिंस 9:30, सिंस 10 PM. जो भी टाइम, घड़ी का टाइम जो आएगा वो आप सिंस लिखोगे. सिंस 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, ओके. फिर उसके बाद डेज में चले जाइए. जैसे हमारे नाम रखे हैं, डेज के नाम रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे, देन थर्सडे. दीज आर द नेम्स, ठीक है. आप ऐसे नहीं बोल सकते. मैं बोल रहा हूं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे. अब कौन सा मंडे? वीक में मंडे तो 2-3 आएंगे. नो, देयर इज ओनली 1 मंडे इन वीक. और अगर पिछले मंडे की बात कर रहा हूं तो मैं लास्ट मंडे बोलूंगा, ठीक है. तो वहां पर भी सिंस ही आएगा. तो यहां इसके साथ भी क्या आ गया? सिंस आ गया. उसके बाद चलिए मंथ के नाम आगे, मई,
जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, ये भी सिंस। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशन सिंस मई, सिंस जून, सिंस जुलाई। ठीक है, तो ये ऐसे आपका जून जुलाई ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये भी सिंस, क्योंकि आपको कोई इनडेफिनिट कुछ नहीं है, क्योंकि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि ये क्या है, ये कि कौन सा मई, साल में एक ही मई आएगा। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद क्या है, टाइम, देन डेज, देन मंथ्स, देन ईयर्स। सिंस 1972, सिंस 1981, सिंस 1947, सिंस 2020 और 2019। ये भी एक ही बार आएंगे। आप ये नहीं पूछ सकते कौन सा 1972, एक ही बार आएगा, डेफिनेट इज डेफिनेट। ठीक है, जैसे सिंस 1947 हम क्या बोल गए, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे सिंस 1947। आप ऐसे नहीं बोल सकते कौन सा 1947, एक तो तब आया था जब पाकिस्तान बना था, और कौन सा है, कोई भी नहीं है, डेफिनेट है, देयर इज ओनली वन 1947, सो दिस इज डेफिनेट। ओके, बट एंड देन सिंस 2019, तो ये आपके आ गए ये। और लास्ट वन इज पार्ट्स ऑफ द डे, सिंस मॉर्निंग, parts of day, because they happen to be only once in the day। जैसे since morning, I have been waiting for you since morning। आप ऐसे में कौन सा since morning, अभी तो since morning सुबह थी, अभी 2 घंटे बाद फिर since morning आएगी, 3 बजे के बाद फिर no, since morning, since morning, since morning, afternoon, noon, इवनिंग, नाइट, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आ गया पार्ट्स ऑफ डेज। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस टाइम से शुरू करो, टाइम, देन नेम्स ऑफ डेज, देन नेम्स ऑफ मंथ्स, देन नेम्स ऑफ ईयर्स, एंड देन पार्ट्स ऑफ डेज। हो गया, जितने मर्जी करते रहो, आप कोई गलती नहीं करोगे। सिंस 9 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जुलाई, सिंस 1970 और सिंस 2007, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून। तो ये हो गया। अब फॉर कहाँ आएगा, फॉर इज इनडेफिनिट, यू आर नॉट श्योर अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम सेइंग आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। आप नहीं समझोगे, अभी तो आप देख करके बोल दोगे कि अच्छा अभी बोल रहा है, तो अभी 3 बजे हैं, तो इसका मतलब कि ये 2 बजे से मेरा वेट करें, नहीं। लेकिन सपोज आप रात को उसको फ़ोन करते हो, अरे भैया पता है जब आप स्कूल गए थे या कॉलेज गए थे, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। अब कौन सा फॉर एन आवर, यहाँ पर फिक्स है, यू आर इन फिक्स, पजल्ड, फॉर एन आवर, विच आर, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 9 to 10, 10 to 11, कोई पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कोई एक स्टूडेंट जाओ, कोई दो स्टूडेंट्स जाओ, तो कोई पता नहीं, यहाँ भी गिनती चलेगी। फॉर एन आवर, 5 hours, ठीक है, ये इसकी जगह आ गया। डेज की जगह क्या आ गया, फॉर 1 day, 5 days, 10 days, फिर मंथ्स भी ऐसे आ गया, फॉर देन फॉर 3 months। I have been preparing for examination since September। I have been preparing for examination for 3 months। Which 3 months? I do not know। For 3 months, for 5 months। Similarly, then we have for 2 years, 5 years, 10 years, not sure। तो यहाँ पर सभी क्या आया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 भी कैसे लिखना है, 1 से 12 तक की गिनती जब ऐसा लिखेंगे तो वर्ड्स में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है 5 days। सिर्फ डेट्स और टाइम्स को ऐसे लिख सकते हैं, बाकी जगह 1 to 12 की जितनी भी आप ये लिखना चाह रहे हो, कोई फिगर लिखना चाह रहे हो, दैट शुड बी इन वर्ड्स, नॉट इन, चाहे वो हिंदी है इंग्लिश है, उसमें आपने ऐसे ही लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये तो बात क्लियर होगी कि सिंस इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम,
they have names, and this is period of time. Okay, so they don't have any name. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यूज ऑफ, एक हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल रहा है, सिंस व्हेन एन एक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है, व्हेन वाज इट स्टार्टेड, देन use of has been, have been, plus use of since for, and where to use since and where to use for is very much clear. Preposition since for is also clear. So I think there is no now you are not puzzled whether to use present perfect continuous tense or to use present continuous. Everything is clear. Okay, thank you.